हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं 24 के पोस्ट इंट्रो सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। हर जगह घड़ी दिख हाँ, रही। घड़ी दिख रही है। वॉच मेकर स्ट्रीट। ये क्या हम पुराने समय में आ गए क्या? नहीं, वो आगे की स्टोरी आगे की होगी। स्टोरी। हाँ, மா வந்துட்டேன் சீக்கிரம் வாங்க வரேன் வரேன் நிறைய இடம் போயிட்டு இருக்கு டேய் வரேன்டா கடை முழுக்க கடிகாரமா தொங்கிட்டு இருக்கு ஆனா நேரத்தோட அருமை தெரியல சீக்கிரம் வாங்கம்மா 4 இடத்துக்கு நான் और போகணும் कितनी सारी घड़ियां हैं। सच में। ஆரத்தியை கரைச்சு உனக்கா காத்துட்டு இருக்காங்க என்ன இவன் லைட்ட போட்டு விட்டு போயிட்டான் பாரு கரண்ட் பில் வந்தாதான் தெரியும் ओ कितनी, मतलब वो देखो ना, हाँ, हर हर तरह जगह की पे। घड़ियां हैं। இல்லையா மா எத்தனை நாள் अच्छा, वो शॉप ही है। हाँ, वो नीचे का फ्लोर पूरा शॉप बनाया हुआ है। ஆமா நீங்க என்ன உலகத்துல போட போறீங்க இருக்கிற ஓட்ட ஓட சொல்ல போட போறீங்க பொட்டி நிறைய தங்கமும் வைரம் வச்சிருக்கேன் தாரம் எடுத்துட்டு போறியா ஆளை பாரு என்ன बर्तन बेचने। ஆச்சு ஆச்சு என்னம்மா இது ஹேய் இத படுற இங்க வந்தது பாக்குறல குடுமா ஆமா இதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிறது ஆணி அடிக்கிறது சேருக்கு முட்டு கொடுக்கறது எங்க வீட்டுல கொசுவ கூட இதுலதான் அடிப்போம் இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது இதுக்கும் என் பிள்ளைக்கும் ஒரே வயசு ஆமா ओ हाँ, யாருக்கு தெரியும் तो ये वो ट्रेन वाली लेडी है जिनके पास वो थे। உள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியல திறக்கவே முடியலடா குடுமா நான் திறக்கிறேன் ஆமா இவ்வளவு வருஷமா நாங்க திறக்க முடியாதத நீ திறப்பியாக்கும் கூடாங்க அம்மா அம்மா என்னடா? அந்த வழக்கமும் உடைக்கிறக்கான பெட்டி கொடு பாத்தியா இப்பதானே பேசிட்டு இருந்தோம் இதோட அருமை தெரிஞ்சதா இப்போ ஐசா இதை எடுத்துக்கிட்டு போக பார்த்தாங்க ओ ये எவ்வளவு हाँ, ये तो पाके वे देना। பாரு ओ भाई साहब, नो, मतलब कोई सिंपल बॉक्स तो नहीं है ना। उसे खोलने की कितनी माटिया ओ भाई साहब, तो ये एक्चुअली इनका डबल रोल है, इसमें ट्रिपल रोल है, सॉरी। வீட்டுல இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம் போறேன்ட்டு उनके बेटे बन के ही खुद आए। பழச போறேன்ட்டு ஒரு நாள் நீ மட்டும் தான் பழசா இருக்க போற கடைசியில உனக்கு ஒரு பக்கெட் தரேன்னு சொல்ல போறான் மாதாஜி வர வர ஆக்டிவிட்டிஸே சரியில்லை டேய் கிளம்புடா டேய் சிவங்கம்। சூயிங்கத்த கண்ட இடத்துல துப்பாதான் எத்தனை தடவை சொல்றது செருப்புல எல்லாம் ஒட்டுதுடா டேய் கிளம்புடா தரித்திரா கெட் அவுட் காபி கூட குடிக்காம ஏன்டா போன வந்து டிஃபன் சாப்பிடவா சரி என்னடா மீன் குழம்புமா ரொம்ப நாள் ஆச்சுமா சரி சரி அது எப்பறா வெக்கமே இல்லாம வெக்கத்தை பார்த்தா வயிறு நிறையுமா அதெல்லாம் நாங்க கக்கத்துல வச்சுக்குவோம் अच्छा, वो बॉक्स था उसके नीचे। சரவண வச்சிருக்கான் பாரு டேய் என்னடா அத போடுறா वो उसके नीचे रख रहे हैं भाई, इतना इम्पोर्टेंट बॉक्स। हमें उसका मतलब ही नहीं पता है, उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है। இல்லனா அம்மா மீன் குழம்புன்னு சொல்லிச்சா அதான் ஆமாடா और पता है कि उसका कोई मतलब भी नहीं है। குழம்பு வெச்சு போட நான் இருக்கேன் चाबी तो नहीं ஒரு வாய் சோறு போட ஒருத்தி இருக்காளா கேக்குதாடா ஆ, ஆ, கேக்குது உன்னை உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டதான் என் மாமன் பொண்ணுங்க வரிசையில காத்துட்டு இருக்காளுங்க ओ, ओ समांता, हम्म, समांता। समंता। हाँ, ये हाल तो हमारा भी है। என்னங்க இவ்வளவு அழகான பொண்ணு ஆனா வாய் பேச முடியாம இருக்குதுங்களே பாவங்க யார் இந்த பொண்ணா? ஆ. இந்த பொண்ணு ஊமையா? அவ பேசினா பிரளயமே வரும் சார். அந்த பொண்ணு இந்த பெரியவரோட பேத்தி, சென்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சர் படிக்க போறா. இவங்க எல்லாருமே ஏன் செய்கையிலே பேசிக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்துல உள்ள ஒருத்தரை கடுமையா பேசினதுனால அவங்க வீட்டை விட்டே போறதுக்கு இவங்க எல்லாம் காரணமாயிட்டாங்க. அது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை, அதுக்கு பிராயச்சித்தமாவும் இனிமே பேச போற வார்த்தைகள் மேல கவனமா இருக்கணும்ன்றதுக்காகவும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் காலையில 6 மணில இருந்து சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் அந்த வீட்டுல யாருமே பேச மாட்டாங்க. மௌனம் இருக்கும். तब तक ही बात नहीं करने वाले थे वो लोग। अच्छा, मैं समझ रहा था कि उनको बात करना। ये वो अभी उन्होंने बताया कि 6 बजे के बाद। भाई साहब, ये इनको जानती हो तुम? ये एक था टाइगर में थे, हाँ, और भी बहुत मूवीज में है वो। हाँ। लाइफलाइन हॉस्पिटल अगेन वही बर्ड दिख रहा है, मतलब ओ, तो पर जला और वो अंदर गया है। हॉस्पिटल के अंदर गया उड़ते हुए। ओ भाई साहब, कॉटन में लगे हैं। हाँ, मुझे तो लग नहीं रहा ये बर्ड कोई ऑर्डिनरी बर्ड है।
पूरे हॉस्पिटल में आग लगी। हाँ ओ ओ नो, नाम सुना, वो आत्रेय था, मतलब वो उनके भाई हाँ जो नीचे गिर इसलिए गए थे। ऐसा। हाँ हाँ। ओ भाई साहब, तो अभी तो ये काफी बूढ़े हो चुके होंगे। चाबी है ओ उनके भाई साहब। पास। और ये अच्छा उनके ये भी साथ तो थे। थे हाँ उनके साथ। டாக்டர் நான் கேட்டதெல்லாம் நிஜமா? இட்ஸ் அ மிரக்கல் மித்ரன். 26 வருஷத்துக்கு அப்புறமா கோமால இருந்து வெளியில வரது ரொம்ப அபூர்வம். हम्म, But 26 otherwise, साल it's कोमा completely में? paralyzed. अच्छा वो जब गिरे थे नीचे शायद तब उसके से वजह वह- से। Absolutely normal. மித்ரன், ஆனா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. अब क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा वो पहचान ही नहीं पा रहे। மித்ரன் वो 26 साल बाद उठे हाँ, तो इसलिए वो- उनको हाँ वो पहचान में नहीं आ रहे। சார் சார் हाँ एग्जैक्टली। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज को। 2016। 16। கண்ணாடி கூட வேண்டாம் சார், இப்பதான் நீங்க तो उन्होंने अब तक खुद को भी नहीं देखा है कि वो कैसे दिखते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सच में एक मूवी में चौथा लुक है ये। सच में एक तो दोनों भाइयों का लुक बहुत अलग दिखाया था। ये तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ऐसे थे। எல்லாருக்கும் ரொம்ப நாள் வாழணுங்கிற ஆசை இருக்கு. ஆனா யாருக்கும் வயசானா வாழணுங்கிற ஆசை இல்லை. பார், வாழாமையே வயசாயிடுச்சு மித்ரா. இப்படி ஒரு வாழ்க்கை என்னால வாழ முடியாது. कितने सही बात कही ना। வயதாவெல்லாம் இனிமே நான் பார்த்து பரிதாபப்படுவேன். காலத்தை என் கைக்குள்ள வச்சுக்கணும் ஒரு மிஷின் பின்னாடி போய் சுமட்டுற நேரத்துல हाँ 24 வருஷத்தை நான் இழந்துட்டேன். उनको कितना गुस्सा होगा। கால் காலம் எல்லாம் டாக்டர் டாக்டர் உலகத்துல எந்த टाइम के लिए उन्होंने उस मशीन के पीछे भागे और हाँ। फिर இவருக்கு குணமா वो टाइम की वजह से उनके साथ क्या हो गया। என்னால முடியும், நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேனா? எனக்கு எக்ஸ்கியூஸ் வேண்டாம், சொல்யூஷன் சொல்லுங்க. ஐ வாண்ட் த கியூர். அதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு. 26 வருஷத்துக்கு பின்னாடி போய் அவருக்கு நடந்த இந்த ஆக்சிடென்ட்டை நடக்காம பண்ணுங்க. In other words, it's impossible. उन्होंने क्या बोला अभी कि वो इंसिडेंट। கவலைப்படாதீங்க, हाँ जब वो नीचे गिरे तभी उसकी वजह से। அவ சொன்னது கவனமா नहीं डॉक्टर ने बोला एक ही केस में पॉसिबल है कि पीछे जाकर अगर பின்னாடி போக முடியுங்கிறது हाँ தெரியாது. ஆனா உனக்கு எனக்கும் தெரியும். அந்த வாட்சிங் हाँ அந்த வீட்டு अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो वॉच का क्या पर्पस है। टाइम मशीन की तरह। ओ भाई साहब, सब कुछ तबाह करके वापस आ गए आप। अच्छा वो जगह वो देख रहे हैं। சார் प्रोजेक्ट लिखा है उसमें 24। उस बॉक्स पे भी 24 ही नाम था। வணக்கம். டைம் இப்போ 4:42 PM. நான் டாக்டர் சேதுராமன். இந்தியாவில் இருக்கிற எத்தனையோ பிரபலமான வாட்ச் கம்பெனிஸ்ல எங்களோட ஃபீனிக்ஸ் வாட்ச் கம்பெனியும் ஒண்ணு. நாங்க பல விதமான வாட்ச்களை மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கோம். Now, at a very basic level, what is a watch? டைம் என்னன்னு காட்டுற ஒரு டிவைஸ், அவ்வளவுதான். And as you all know,
டைம்ங்கிறது நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒண்ணு. ஒருவேளை அதை கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சா हाँ ப்ராஜெக்ட் 24. अच्छा तो सब कुछ उसके समझ के ले द्वारा रहे वो हो। समझ के ले रहे कि वो काम कैसे करता है। तो इसका मतलब है अगर वो वॉच उनके हाथ लग गई तो वो फिर से उस एरा में जा सकते हैं। என்ன விளையாடுறமா எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் குழந்தைய தூக்கிட்டு இங்க வராதேன்னு. மித்ரா, இந்த லேபை பழையபடி ரெடி பண்ணு. இந்த புக்கை வச்சுக்கிட்டு watch க்கு माय गॉड, ये खुद बनाना चाहते। इतने दिनों से वो कि उनके हाथ में थे कि उनका स्टैम्प हो चुका है उसके हाथ में। भाई साहब वो की जा कैसे रही है जिंदगी, कहाँ कहाँ जा। डंपिंग गार्डन में भी चले गए। मेटल पे वो ये हो जाएगी। நான் என்ன சொல்றேன், அத கல்யாணம் காட்சின்னு அலையுதுங்க. நான் 10 மாசம் சுமந்தது இருக்கேன், அந்த எண்ணமே இல்லாம இருக்கான். டேய் ஆட்டோ வந்துருச்சுடா, போய் சரக்கு பிடிச்சு பாத்தியா? டேய் वो போடுங்க. देखो वो गाड़ी कहाँ पे है यार। அம்மா ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்கம்மா. என்னத்த சொல்றது போங்க. எத்தனை நாள் தான் நானும் தனியாவே பேசிட்டு நிக்கிறது. அட ஒரு சண்டை போடுறதுக்காக ஒரு மருமக வேண்டாமா வீட்டுல? நான் ஒரு 4-5 இடத்துல நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கேன். சரி, நல்ல மருமகளா கண்டிப்பா உங்களை தேடி வருவா. அம்மா என் மனசுக்கு ஒண்ணு நல்லா படுதுமா. மணிக்கு நேரம் கூடி வந்துருச்சு, எல்லாமே தானா அவனுக்கு அமையும் பாருங்க. உங்ககிட்ட எப்ப பேசினாலும் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கு. சந்தோஷம். என்னமோ மணிக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு, நீங்க தான் பொறுப்பு. ஆமா, உங்களுக்கு அந்த சிந்தனையே வேண்டாம். உங்க வீட்டுக்கு அருமையான மருமகா வருவா, தைரியமா போங்க. ओके, उन्होंने च्युइंगम खा के फेंका था, उनकी हाँ, माँ कह रही थी अरे मेरे चप्पल भाई पे वो इसका च्युइंगम चिपक हाल। जाता है। மணி ये कितना क्या दिखाया है? अनएक्सपेक्टेडली दिखाया है, मतलब डेस्टिनी। हाँ, என்னடா இது? और उसका रेफरेंस पहले ही दे दिया था ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे। கஸ்டமர் வந்தான்னு போனேன். மணி எங்க? இதோ 5 நிமிஷத்துல வந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு போய் 1/2 மணி நேரம் தான் ஆச்சு. இன்னும் 1 மணி நேரத்துல எப்படி வந்துருவான்? கடையில இருக்க பொருள் எல்லாம் எவனா தூக்கிட்டு போட்டோம், அப்ப தெரியும்டா உங்களுக்கு. ஏய், அந்த சுவிட்ச் ஷாக் அடிக்குது, ஆளை வச்சு பாருன்னு சொல்லி எத்தனை நாள் ஆச்சு? எனக்கு ஷாக் அடிச்சு ஏதாவது ஒண்ணு ஆனாதானே தெரியும் உங்களுக்கு. இது என்ன கீ வித்தியாசமா இருக்கு? எதோட சாவியா தெரியல. अच्छा उन्होंने उनके टेबल पे रख दी। ओ भाई साहब देखो कितना पास में आए। हाँ, 26 साल बाद। जिसको वो मिलनी चाहिए उसी के पास आके रुक गई है। நாயர் வாங்க. வால் கிளாக் ரெடி ஆயிடுச்சு. சரவணன் கொடுக்க சொன்னேனே. வால் குளோக் அவன் கொடுத்தாச்சு, பைண்டிங் சாவியை கொடுக்க மறந்துட்டான். பைண்டிங் சாவி. அட, ஒரே நிமிஷம். சாவி இங்க தான் வச்சிருந்தேன். இந்த சாவி. மணி சாவி இதோ. சாரி நாயர், திரும்ப வர வச்சிட்டேன். காசு சரவணன் கிட்ட கொடுத்துட்டேன். தேங்க்ஸ். उनके ध्यान में आ गया हो कि ओ भाई साहब देखो कितनी, और उस पे भी वही साइन है। समझ गए, वो हाँ। साइन तो बिल्कुल सेम दिख रहा है। ओ भाई साहब अब वो वॉच कितने सालों बाद बाहर निकल रहा है। वो ऑटोमेटिक अंदर जा रही है। हाँ, वॉच, उसमें से भी एक वॉच ही निकली है वो। हाँ வாட்ச். அதான் நான் பார்த்தேன். ஒரு வாட்ச் மெக்கானிக் கடையில வேற என்ன இருக்கும்? இதுக்கு போய் இத்தனை வருஷம் उनकी शॉप भी वॉच யோசிக்கவே இல்லையே. பார்க்க புதுசா இருக்கு. ப்ராஜெக்ட் 24 प्रोजेक्ट 24 बेसिकली यही होगा कि ऐसी वॉच होनी चाहिए जो टाइम ट्रैवल कर टाइम ट्रैवल कर सकता है बिल्कुल। வந்துட்டேமா. அந்த சுவிட்ச் ஷாக் அடிக்குது, மாத்த சொல்லி எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? மாத்த போறியா இல்லையா? ஐயோ ஷாக்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா. பாக்குறேன். மாதாஜி, அந்த பெட்டி இருக்குல்ல, वो
अच्छा इसलिए वो करंट उनके हाथ में वो एक्टिवेट हो गए उससे। डिवाइस एक्टिवेट, हाँ वो देखा था। हाँ तब भी वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही शुरू तब होती। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को इतना ही लगता था, लेकिन अभी इजीली मिलती है ना, हाँ तो वो सेंस बनाता है वो चीज। तो वॉच में कन्वर्ट हो जाती है भाई साहब। बेल्ट भी बाहर निकला उसका, मुझे भी चाहिए कैसे हाँ, सच बड़ी में। मजे। बहुत महंगे होंगे। लेकिन इस पे टाइम दिखता कहाँ पे? के लिए எங்கடா போய் தொலைச்ச? 5 நிமிஷத்துல வரேன், எங்கடா போனே? அம்மா என்ன திட்டிட்டு இருக்காங்க. சரி அதை விடு. அந்த டயர் கடை காதர் வந்தான், அவனுக்கு வாட்ச் கொடுத்தாச்சு, அதுக்கு 150. அதுக்கப்புறம் அந்த டீ கடை நாயரு, அவனுக்கு வாட்ச் கொடுத்தாச்சு. வைண்டிங் கீ கொடுக்காம அது பரவாயில்ல விடுறா, இந்த 250 ரூபா. அப்புறம் இங்க ஒரு கேவலமான பச்சை கலர் லேடிஸ் வாட்ச் வச்சிருந்தீங்கல்ல, அத ஒரு சூப்பர் ஃபிகர் வந்துச்சு, அது தட்டிட்டேன். அதுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட். 10%? அது விடுறா, அதுக்கு ஒரு 800 ரூபாய். இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் 1000 ரூபாய். இதுக்கெல்லாம் என்னோட तो ये शायद टॉप संभालते हैं। 100 ரூபாய். हाँ ऐसा ही कुछ। 100 ரூபாய்? டேய் 100 ரூபாய் இதுக்கு உனக்கு. டேய் அம்மார சொல்லிடுவேன். வந்தாலும் வச்சுக்கோ. ओ हाँ, कितना सही था वो सच में पेपर में। रिसेट टाइम। अब उन्हें भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये है क्या मामला। ओ भाई साहब, लेकिन वो कोई आम घड़ी नहीं है। अगर इसमें चेंजेस हो गए ना तो वो इस ओ भाई साहब, ओके तो 5 मिनट पहले का टाइम सेट हो गया वो। ओ भाई साहब क्या जबरदस्त। अब उनको पता है क्या फास्ट होने में वाला है। चलेगा वो 10। उनको लग रहा होगा ना कि ये चीज मैंने देखी है कहीं ना कहीं। हाँ, वो 10 बजे का करने वाले थे बट वो 9:56 का हो गया टाइम। वो हाँ ज्यादा घूम गया था। Oh, God. देखो वो अभी भी घड़ी उन्होंने रखी नहीं है उस पे। वो ओ सॉरी, पेपर वेट रख। पेपर वेट। अब वो आएंगे और फिर से पैसे देंगे। हाँ அந்த டயர் கடை காதர் வந்தான், அவனுக்கு வாட்ச் கொடுத்தாச்சு, அதுக்கு 150. அதுக்கப்புறம் அந்த டீ கடை நாயரு, அவனுக்கு இந்த வாட்ச்லாம் கொடுத்தாச்சு, அதுக்கு ஒரு 250 ரூபாய். அப்புறம் இங்க ஒரு கேவலமான பச்சை கலர் லேடிஸ் வாட்ச் வச்சிருந்தீங்கல்ல, அத ஒரு சூப்பர். और उनको पता है वो क्या करने वाले हैं, 100 रुपए लेने वाले हैं उसमें से। हाँ, அதுக்கு ஒரு 800 ரூபாய். இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் 1200 ரூபாய். இதுக்கெல்லாம் என்னோட உழைப்பு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அதுக்கு வெறும் 100 ரூபாய். ஓகே? ये देखो है ना। हाँ ये बात समझ में आ गई उन्हें कि ये वो शायद फिर से एक बार करके दिखेंगे। वो पहले नोटिस कर रहे कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। देखना अभी वो फिर से करके देखेंगे। फिर से 5 मिनट पीछे, 10 मिनट। वो बाकी घड़ियां भी पीछे जा रही हैं। हाँ ओ आहा। भाई साहब, तो एक घड़ी रिसेट नहीं हो रही, बाकी भी हो रही। ओ वाह। एक्चुअल टाइम चेंज हो रहा है ना। फिर से 9:56 57 पे आ गए वो। और उसमें सिर्फ टाइम में आएगा। ओ भाई साहब, अब मुझे नहीं पता सूर्या अब को, उन्हें यकीन हो गया है, नहीं ये मामला कुछ अलग है। सूर्या को कितनी बार गिरना पड़ा होगा इस सीन के लिए। माताजी कौन सा मेला माताजी? हम होते ना तो हम इतना ही खुश होते थे। टाइम मशीन भाई हाथ में। ஏய் மணி, ஏய், ये आगे आते अब तुम्हें 100 रुपए लेके नहीं जाने देंगे। திட்டிட்டு இருக்காங்க. சரி அதாவது மூடுற டயர் கடை காதல் வந்தடா. வாட்ச் கொடுத்தியா? ஆமா 150 ரூபாய் வாங்கினியா? ஆமா என்ன டேய். டீ கடை நாயர் வந்தாரா? ஆமா வாட்ச்ல கொடுத்தியா? ஆமா பாயிண்டிங் கீ கொடுக்கலல்ல? ஆமா 250 ரூபாய் வாங்கினியா? वो सब बातें बता रहे हैं।
ஷோகேஸ்ல ரொம்ப நாளா கேவலமா ஒரு பச்சை கலர் லேடிஸ் வாட்ச் இருந்தது. ஆமா ஒரு சூப்பர் ஃபிகர் வந்துச்சா? ஆமா பல்லு வச்சுதா? ஆமா 10% है ना 10% डिस्काउंट. மாமனை என் வாட்ச் 800 ரூபாய்க்கு வித்தியாடா. ஆமா அந்த 800 ரூபாய் எடுத்து வை. यही तो बात वो करने वाले थे. वो இதெல்லாம் ஒரு உழைப்புன்ட்டு என்கிட்ட 100 ரூபாய் கூலி வாங்க போற. அதானே? பண்ணார். எடுத்து வா. டேய் எப்படி ரமணி போடா. போய் வேலை பார். वह सब जानता हूँ. एग्जैक्टली. बहुत भाई बढ़िया एक चीज हाथ अलग ही लगे लेवल उनके का यहाँ. वो कॉन्फिडेंस आ चुका है भाई साहब. अच्छा हो गया वो बहुत जल्दी अवेयर हो गए उस चीज पे कि वो एग्जैक्टली है क्या. ये देखो यहाँ पे अब ये नारियल फोड़ गए और एक इंसान गिर गिरेगा. जाएगा. எங்க இரு நான் வந்துடுறேன் ஹலோ. ஆ? கீழே பாத்து. ओ भाई बचा लिया इस बार. முன்னாடி பார்க்காம பின்னாடியே பார்த்ததுனால अब ये इसका करेंगे क्या ये देखने लायक होगा आगे. முன்னாடி हाँ पीछे का तो देख लिया, आगे क्या होने वाला है वो भी देखना चाहते हैं. ओ भाई अच्छा बारिश होने वाली है. ओ भाई साहब இப்படி ஒரு மழை கை வலிக்க துவைச்சு போட்ட துணி எல்லாம் வீணா நனைஞ்சு போயிருக்கும். என்னைக்கு மழை பெய்யணுமோ அன்னைக்கு பெய்யாது, என்னைக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் பெய்ஞ்சு தொலையும். கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் வீணா போச்சு. சார் உங்க வாட்ச்ல டைம் பத்தரை. 10:30 बजे. अब वो पीछे ले रहे फिर से. फिर से रिसेट कर रहे हैं उसे. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. 5 மணிக்கு ஷார்ப்பா வந்துரு 5 மணிக்கு ஆமா என்ன அது கட்டையை வாங்கிட்டு இருக்க செடிக்கு தண்ணி தெளியா சாவுக்குறாக்கு மணி और वही बारिश में भीग गए थे. நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன்டா. காமாட்சி பொண்ணு சுதாவை और मैं सोचू अभी इनके मॉम घर पे थी तो अभी बाहर से कैसे. கடையை திறந்து போட்டு போக अच्छा ये बाहर जाने वाले अभी. கூட எடுத்துட்டு போ. இது எதுக்குடா? வெளியில மழை பெஞ்சுனா ஏய் பங்குனி மாசம் வெயில் பல்ல இழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, மழை எப்படிடா பெய்யும்? மழை பெஞ்சா மட்டும் இல்ல வெயில் அடிச்சவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க. நீ எடுத்துட்டு போய். சரி இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வெயில்ல போயிருக்கேன்ல, அப்ப இல்லாத அக்கறை இப்ப என்னடா திடீர்னு? மாதாஜி வெளியில கெட்டாஸ்ட்ரஃபி அப்பஸ்ட்ரஃபி பிகாஃபி அட்ராசிட்டி நடந்துருக்கு உனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. 10 மாசம் சுமந்து பெத்த பையன் சொல்றேன்ல எடுத்துட்டு போயேம்மா. டேய் ஏற்கனவே உனக்கு பொண்ணு கிடைக்கல, நானே கவலையா இருக்கிறேன். கண்ணெல்லாம் உளறியடா, எனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையும் போயிரும் போல் இருக்கு. ஏன்டா இப்படி இருக்கிற? எடுத்துட்டு போ. பார்த்து பத்திரமா இரு. பாய். ஆ, ஆ. வரும்போது கூட எடுத்துட்டு வா, மறந்து வச்சு வந்துடாத. சரி சரி. कपड़े अच्छा वो निकाल के. कपड़े पूरे हाँ. ऐसे कर लेंगे. इनको पता है भाई आगे क्या होने वाला. फ्रीज फ्रीज हो गई. मतलब वो अभी टाइम के आगे हैं? ओह ओ भाई टाइम साहब, को फ्रीज कर दिया. ये तो एकदम महाभारत वाला सीन ही हो गया नहीं. मतलब एक एक बूंद है वहां पे और वो वहां पे फ्रीज हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने टाइम को फ्रीज करके रख दिया है. ओह ओ गॉड. भाई 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 और वो अभी जमीन पे गिरने वाली. गिरी भी नहीं है, वो बीच में ही है. उतने टाइम उतने सेकंड्स के लिए वो शायद फ्रीज हो गया है. सच में. तो दोस्तों 24 का ये पोस्ट इंट्रो सीन सच में अमेजिंग था. और इसमें जो उनको घड़ी मिलती है जो बॉक्स में रहती है जिसपे 24 लिखा होता है, कैसे ना कैसे वो चाबी वहां तक पहुंची है. ये डेस्टिनी हम बोल सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से वो चाबी वहां तक पहुंची है. और ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट दिखाया गया है, उसके जो मतलब वो च्युइंगम वाला सीन जैसे उनकी माँ के चप्पल को जो है वो चिपक जाता है और वो
चाबी यहाँ तक आती है और वो कैसे उस बॉक्स से जब घड़ी निकलती है तो उनको स्टार्टिंग में लगता है कि ये एक ऑर्डिनरी घड़ी हो सकती है, क्योंकि वो बोलते हुए कि घड़ी बेचने वाले की दुकान में घड़ी आ चुकी है, तो ये कॉमन बात है। लेकिन जब वो उसको करंट लगता है और वो पीछे गिरते हैं और उस सीन के बाद उनको समझ में आता है कि ये घड़ी एक्चुअल में टाइम में इधर उधर जा सकती है, तो दोस्तों वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब डेस्टिनी थी जो कि जो चीज़ जिसकी है, जिसके लिए बनाई गई है, जिसके हाथों में होनी चाहिए, वो उसके पास इतने सालों बाद क्यों ना हो, बट वो पहुंची है। हालांकि जो अथरिया होते हैं उनके पास वो चाबी ऑलमोस्ट आ चुकी होती है और वो बहुत नज़दीक होते हैं वो बॉक्स लेने के, बट जो लास्ट सीन में हमने देखा है जो सेतुरमन होते हैं उन्होंने बहुत ही चालाकी से उन्हें उस गाड़ी से उतरने बेपे में के लिए मजबूर किया था। और वो उस इंसिडेंट के बाद वो जो है वो पूरे कोमा में चले जाते हैं शायद, और उसके बाद वो पूरे 26 साल बाद होश में आए हैं। और प्रेजेंट सिचुएशन में उनके पास ना वो चाबी है ना वो बॉक्स है, लेकिन और उनके जो हाथ पे वो चाबी बनी है। हाँ। तो हो सकता है वो उससे डुप्लीकेट चाबी बना ले काइंड ऑफ, क्योंकि वो एक मेटल की होती है, तो उनके हाथ में वो इतने सालों से थी, तो वो एक पैटर्न उनके हाथ पे बन गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम बोल सकते हैं कि मुझे लगता है उनको वो- घड़ी मिलना, मतलब वो हाँ। घड़ी उनके हाथ में आना और इनका जगना, ये एक डेस्टिनी है। क्योंकि वो दोनों सीन में एक चीज कॉमन थी दोस्तों, जो बर्ड होता है उसके वजह से वो सिचुएशन फिर से स्टार्ट हो गई है। और हमने जब फर्स्ट सीन देखा था तभी वो bird होता तभी है। वो बर्ड वहां पे होता है। तो ये दोनों चीजें काफी कोरिलेटेड है। मुझे लगता है कि अब अत्रिया को ना चाबी की जरूरत है ना बॉक्स की जरूरत है, क्योंकि उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अब चाहता है कि वो घड़ी खुद बनाएगा। और हाँ, बॉक्स में तो यही- सिर्फ घड़ी थी, अब उसे कोई जरूरत ही नहीं है कि वो चाबी ढूंढे और बॉक्स ढूंढे। वो उसमें टाइम खर्च नहीं करने वाला है। अब उसने अपने लोग काम पे लगा दिए, अब वो चाहता है कि घड़ी हम खुद बनाएंगे। और वो चाहता है कि मैं इस चीज का इस्तेमाल करूं। और उसने जो डायलॉग बोला है ना भाई साहब हॉस्पिटल में, सच में। कि मैं चाहता था कि वो घड़ी इस्तेमाल करके टाइम को अपने काबू में कर लूं, बट लुक एट मी कि एक मोमेंट ऐसा आया है कि मैं एज हो गया हूँ और मैंने अपनी जिंदगी जी भी नहीं है। वाह, मतलब मतलब सच सच में में। डायलॉग कितना अच्छा था वो। और टाइम से भिड़ने जाओगे तो यही होने वाला है। तो ये सच में बहुत अच्छा डायलॉग है। और हम दोनों अभी डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि हम जो 2 मूवीज कर रहे हैं, हाँ। संभवम, अध्यायम ओन्नू और ये वाली मूवी, दोनों भी टाइम रिलेटेड है। और हमने ये सोचा भी नहीं था रिएक्ट करने के समय कि ये दोनों मूवी सच में टाइम पे ही है। बिल्कुल। और दोनों ही मूवी ये थोड़ी हमें जॉली मूवी लग रही है कि चलो एटलीस्ट हम इसे इसमें कुछ पार्ट्स फनी भी है। और ये बट संभवम अध्यायम इससे बहुत अलग बहुत मूवी है। अलग और उसे रिएक्ट करते वक्त हमारा दिमाग बहुत खर्च हो गया था। सच में। बट दोनों अलग अलग थीम पे है। टाइम उसकी मेन थीम है, बट बहुत ही अलग है। बहुत ही अलग मूवी है, लेकिन वो दोनों भी मूवीज टाइम पे बहुत ज्यादा बेस है। तो ये हमें अभी पता चला कि ये दोनों मूवी हम टाइम पे ही रिएक्ट कर रहे हैं। टाइम पे, सॉरी, टाइम रिलेटेड बहुत मूवी ही पे टाइम हो रहा है हमारा, बहुत वही। टाइम खर्च हो रहा है इसे बोल के हाँ, ये टाइम भी खर्च हो रहा है इसको बोलते हुए। और दोस्तों आपने बहुत सारी मूवीज जो है हमें कमेंट में सजेस्ट की थी, और बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट में हमें सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारी पिछली मूवीज अभी भी पेंडिंग है, तो वो हम अभी उसको ला रहे हैं। तो आपकी मूवी का नंबर बहुत जल्द लगेगा आगे जाके। और नई मूवीज भी आती रहती है तो वो भी एडजस्ट करनी होती है। ऐसे हुआ था क्योंकि हम एट अ टाइम आमरण कर रहे थे और उसके बाद हम कर रहे थे माँ अवतार नरसिम्हा। मावतार नरसिम्हा, और उसके बीच हमने धुरंधर। धुरंधर की। और उसकी वजह से वो दोनों मूवी जो थी वो भी थोड़ी डिले हो गई। वो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता वो उनका क्लाइमैक्स और वो Delay हो डिले गया हो गया। तो उसकी वजह से जो भी मूवी आपने हमें पहले सजेस्ट की थी वो भी नहीं हो लेट पाई। हो हाँ। चुकी है। और उसमें हम एनिमे भी रिएक्ट कर रहे थे, तो वो इतना पैक हो गया था दोस्तों, इसलिए ये सारी मूवीज लाना बहुत हार्ड हो गया था। तो भी मैं डेली जो है हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं हर मूवीज को। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों 24 मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।